ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور اپنے تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ کبھی دوبارہ مسلط کی گئی تو دشمن ہمیں ہمیشہ تیار پائے گا۔ کشیدہ صورتحال میں پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ بہادر افواج کے درمیان مربوط تعاون تاریخ کا سنہری باب۔ بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانوں پر درستگی سے نشانے لگائے۔ فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو سبق سکھایا۔ دشمن یہ سبق قیامت تک یاد رکھے گا۔ ہماری بھرپور تیاری سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ پاکستان نیوی 1965 کی طرح دوارکا کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار تھی۔ بحری جارحیت کرتا تو دشمن کو مزید رسوائی برداشت کرنا پڑتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا معرکہ حق کے دوران آپریشن بنیان المرصوص میں پاک بحریہ کے اہم کردار پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیول ڈاک یارڈ کا دورہ۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ۔ پاک بحریہ کے جنگی جہاز پی این ایس تیمور کا بھی معائنہ۔ وزیر اعظم کی پاک بحریہ کے افسران اور سیلرز سے گفتگو۔ مثالی پیشہ ورانہ مہارت اور ثابت قدمی کو سراہا ISPR۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر لیو جانگ چاؤ سے بیجنگ میں ملاقات۔ سیاسی پارٹیوں کے درمیان رابطے مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے چین کی غیر متزلزل حمایت قابل قدر ہے۔ اسحاق ڈار اسٹریٹجک شراکت دار اور بہترین دوست ملک ہونے کے ناطے پاکستان کے ساتھ تعلقات ترجیح ہیں۔ لیو جانگ چاؤ۔ اور آج آپ پاکستان کی گلیوں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ فتح نہیں، پیس سیلیبریٹ کرتے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ کو ان میں ہیوملٹی نظر آئے گی۔ وی آر ویری ڈاؤن ٹو ارتھ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وی آر بوئنگ آر ہیڈز ڈاؤن ان ہیوملٹی rather than thumping our chest. Why? Because we prefer peace. لوگ ہیومینٹی کی ترقی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا کو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، اس کو مس انفارمیشن کے ایشوز ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے ایشوز ہیں۔ There are too many issues that this global community has to confront, is confronting. پاکستان کی قوم نہ پہلے جھکی تھی اور نہ ہی آئندہ جھکے گی۔ ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کو موسمیاتی تبدیلی، بڑھتی آبادی سمیت کئی مسائل کا سامنا ہے۔ ایسے میں بھارت جھوٹے بیانیے اور بغیر ثبوت پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ پاکستان اور چین ذمہ دار ملک ہیں۔ دونوں کی پہلی ترجیح لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارتی پراکسیز کے خلاف آپریشنز۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی BLF کے 3 دہشت گرد جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیاں، 9 خوارج ہلاک۔ لکی مروت آپریشن کے دوران 5، بنو اور شمالی وزیرستان میں 2 خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فرحاد علی توری، لانس نائک صابر آفریدی شہید۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارتی ایجنڈے کے خلاف بروقت کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کرنے والے بہادر جوانوں لانس نائک صابر آفریدی اور سپاہی فرحاد علی توری کے جذبہ حب الوطنی اور بہادری کو سراہا۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ بھارتی پارلیمان میں ٹرمپ پر وار، امریکی ثالثی مسترد، گھبراہٹ اور عبرتناک شکست چھپانے کی ناکام کوشش۔ جنگ بندی 2 طرفہ تھی، کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں۔ سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کا پاکستانی فضائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ، نقصان پر خاموشی۔ پاکستان نے کتنے بھارتی طیارے تباہ کیے؟ اپوزیشن کا سوال، سیکریٹری خارجہ کا جواب دینے سے انکار۔
भारतीय इंतहा पसंदों का हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला हिंदुत्व ग्रुप का कारकुन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। भूमि हारसागर नामी शख्स इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी, ख्यालात और तजर्बात शेयर करने का एतराफ। अकाउंट बहाली की अपील। भारत और फितनातुल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत का नया प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो से दहशतगर्दों की पुश्तपनाही। हमले की तशहीर से भारत का दहशतगर्दों से गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम नहाद BLA भारत का तैयार करदा फितने का बीज है जो पाकिस्तान के अमन को जड़ से उखाड़ना चाहता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का ताल्लुक बीजेपी से निकला। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बीजेपी की कारकुन निकली। सोशल मीडिया पर अवामी बेदारी ने मोदी की फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। वजीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी के फरोग पर गुफ्तगू। हालिया कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहते हैं। बरतानिया के साथ शराकतदारी और ताउन के फरोग के लिए नए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। पंजाब वाहिद सूबा है जहां अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदामात जारी हैं। रोज नई स्कीम शुरू की जा रही हैं। अवाम वज़ीर आला के मंसूबों से मुस्तफीद हो रहे हैं। आसान कारोबार स्कीम पाकिस्तान की तारीख का बड़ा कारनामा है। लोगों को अरबों रुपए के कर्जे फ्राहम किए गए हैं। कारोबार से लोगों को नए रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का दौरा लॉस एंजलिस। पाकिस्तान कौंसल खाने की राइजिंग पाकिस्तान के तहत आला सतह बिजनेस राउंड टेबल इजलास में शिरकत। पाकिस्तानी सफीर की अमरीकी ताजरों, सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी की सरमायाकारी और ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। SIFC के तहत इदाराजाती इस्लाहात और सरमायाकारी पर रोशनी डाली। वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल की चीन के वज़ीर सेहत से मुलाकात। पाकिस्तान में वैक्सीन, तिब्बी और तशखीसी आलात की मकामी तैयारी की भरपूर सलाहियत मौजूद है। हुकूमत चीन की सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत फराहम करेगी। रिवायती चीनी तिब में माहिरीन के साथ ताउन किया जाएगा। मुस्तफा कमाल चीनी वज़ीर का पाकिस्तान के साथ राब्ते के लिए फोकल पर्सन नामजद करने पर इत्तफाक। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बला, नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और शहर के वस्ती इलाके अल दर्राज पर सुबह से सिहूनी फौज की बमबारी जारी। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर इक्तसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। गजा में जंगबंदी और आलमी इमदाद की आमद पर आयद पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे तवील बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा नागुज़ीर है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत का ख्वाह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। रवां हफ्ते गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। 24 मई तक बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 प्लेऑफ मरहले का कल से लाहौर में आगाज। क्वालिफायर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। जुमेरात को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स पहले एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा एलिमिनेटर जुमे को शेड्यूल, फाइनल इतवार को होगा। लाहौर में होने वाले तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग का आखिरी ग्रुप मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 251 रन बनाए। कराची किंग्स की टीम 18.2 ओवर्स में 172 रन बनाकर आउट हुई। 35 गेंदों पर 88 रन की इनिंग्स खेलने वाले एलेक्स हिल्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और जर्मनी में ATP 500 क्ले कोर्ट टूर्नामेंट हैम्बर्ग ओपन, रूस के आंद्रे रोब्लियो ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अमेरिका के एलेक्जेंडर कोवेस को हराकर लास्ट 16 का टिकट हासिल किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे के आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कराची में पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे निडर सबूतों के जज्बे और ईमानी कुव्वत ने वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मार्का-ए हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शामिल अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों की हौसला अफजाई के लिए कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड पहुंचे। पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से खिताब में वज़ीर आज़म ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि निडर सपूतों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़े किया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन पाक सरजमीन के हर इंच का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। हम एक अमन पसंद कौम हैं और अपने तमाम तस्वीर तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन हम अपने वतन अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरी कौम की जानिब से मैं अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की बरी और फ़ज़ाई और बहरी सरहदों और बंदरगाहों की हिफाजत की और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक पे मिला दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरी और फ़ज़ाई अफवाज की तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक बहरिया भी 1965 की तरह द्वारका की तारीख दोहराने के लिए मुकम्मल तैयार थी। राफेल का अंजाम देखकर भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी आगे बढ़ने की जुर्रत न कर सका। हमारी बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। भारत का फखरिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 400 नॉटिकल मील से करीब आने की जुर्रत न कर सका। पूरी कौम को यकीन था कि अगर भारत ने किसी भी सतह पर बहरी जारियत की गलती की तो इसे आप अपनी फौरी और मौसर कार्रवाई से वो सबक सिखाएंगे, वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ बुरी नीयत से रुख न कर सके। इस इम्तिहान के दौरान
हमारी बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर फाल रहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए किरदार और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद पर दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के हवाले से भी मैं अपना एक मुखलसाना किरदार अदा करना चाहता हूँ, दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुश्किल वक्त में वो न सिर्फ हमारा भरपूर साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। सदर तैयब अर्दवान, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद, शेख तमीम, अज़रबैजान के मेरे बहुत ही मोहतरम भाई इल्हाम, और चीन ने आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कल भी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने PNS बहरान के शहीद लेफ्टिनेंट यासिर को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन की जानिब से मुसल्लत की गई जारहियत के दौरान पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। दिफाई महाज की तरह माशी मैदान में भी कामयाबियों के झंडे गाड़ेंगे। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बहुत ही डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है हमारी इकानमी को स्टेबलाइज करने में, तो इसलिए हमें इस काम को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। और इनके अलावा जो दूसरे अदारे भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, हम उनकी खिदमात को बेहद सराहते हैं, क्योंकि इसी के नतीजे में हमारे जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि बाहर से पैसा आता है, जो जहाँ हमारे फ्रीलांसर्स जो इस वक्त जो ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है और उसके नतीजे में हमारी इकानमी में स्टेबिलिटी आई है। तो मैं सबसे पहले तो सैलानी वेलफेयर के काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज के मौजू के रेफरेंस से मैं दो बातों के ऊपर ख़ासकर अपनी तकरीर का फोकस रखूँगा, जिसमें सबसे पहले कि कन्वेंशनल बैंकिंग की इस्लामिक बैंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन का जो बहुत ही अहम काम शुरू हुआ है, उसके सिलसिले में जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और दूसरा, चूँकि इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जो है वो डिजिटाइजेशन है, तो मैं डिजिटाइजेशन के हवाले से स्टेट बैंक ने और बैंकिंग इंडस्ट्री ने जो काम किया है उसके ऊपर आपको अपडेट दूंगा। लेकिन इन दोनों बातों पे बात करने से पहले, इन दोनों मौज़ूआत पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इकानमी के ऊपर जो अपडेट देता हूँ कि अभी इस स्टेज के ऊपर जो है वो हमने जो अभी तक जो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो एक्शन किए हैं और इस वक्त जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, तो उसमें मुख्तसरन मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। गर्मी है और आपके लिए तकलीफ भी है और आपके ब्लोइंग फैंस खुद डिपिक्ट कर रहे हैं कि इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट मैं आपकी दिलजमी, आपके इंटरेस्ट को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप स्टूडेंट्स ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। इट इज़ अगेन रियली अप्रिशिएटेबल। आई रियली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन टू दिस। Ladies and gentlemen, your today's topic, that preparing your next generation for future, it's an interesting yet very complicated subject to speak upon. Now, for a person like me, when I started my schooling, there was no digital platforms available. Our learning in our age, when we learned, it was the copy, it was the pencil, it was the book. But by the time we came to our professional life, the first challenge was the strength of adaptability, whether I could leave the book and go to that specific screen in which I needed a certain set of skill. Somehow I didn't have it.
Now this was a test for me whether I can prove that I have adaptability. As you all know, that the species, those who live on Earth, if they don't have the capacity to adapt to the weather, they extinct, they diminish. The sudden demise happens. If there's an extreme weather of cold, they die. If there is an extreme hot weather, they die. But the creature which has the capacity to adapt, it survives. So the power of adaptability is the key to it. I am a textbook case for not preparing myself for future. I kept myself very primitive. I was with those books and I thought probably something will automatically happen. I was listening of these law sites. I am a lawyer by profession. I was listening of these good sites for reading books. But in backdrop of my mind, there was a certain fear of machine. And that fear still persists. So for young students, boys and girls, you are fortunate enough that you have been educated in that era when machine learning is the learning and you are learning it. And I will suggest one more course of action for you. We as humans are in habit of creating some things, and I'm borrowing this argument from one book which I've recently gone through by the name of Nexus by Yuval Noah Harari, the same author of Sapiens and Homo Deus. You might not agree with his religious thoughts because he has a different concept and he talks of religion as a creation of man, but I take it as a divine thing. He comments on biblical theories for certain reasons. He comments on Quranic verses with certain explanations, but nothing offensive, nothing blasphemous in it, but still he has his own approach. And he writes it down, but I took that case study here. He says that in Greek times, we humans created a mythology in which we said that there are different gods. There's a god of rain, there's a god of rain, there's a god of wind, there's a god of making you succeed in wars, there is a god of sorrow, there is a god of happiness, and there's a god of joy. But time proved that the time said, and it was proven that those all myths were human created. Now in Roman times, there were different myths. There were myths for power. There were myths for creating states which did not actually existed. So he argues that those myths controlled the human psyche, brain, and work. This was his argument. And he comes now, we humans have created this artificial intelligence. And he links it with the Nazi Germany. He says it is not the story of that I'm talking of some Greek time or I'm talking of some 1,000 centuries past or before Christ details. No, I'm talking of today. I'm talking just 100 years past, that how the men created those machines and how those machines destructed the human race. Now this is a case study, ladies and gentlemen. So we as humans first have to be prepared. We have to be prepared. I agree to what Major Wasim Saab said. I agree to that point where one of the keynote speakers said that the technology is the basis for today's warfare. It has recently happened. It has recently happened in Pakistan-India conflict. You know that. It is in the public knowledge that India has unilaterally mere pani ko rok diya. Pani meri zindagi hai. I know the history that these settlements and civilizations over the course of thousands of years now, they have pani ke nazdeek unhone apne aap ko abad kiya. Pani life hai. Water means life to me. If somebody takes away my riparian rights as Lord Riparian, if somebody stops my water, if somebody
मे इट बी इंडिया और एनी अपर राइपेरियन, मैं एक केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं, तो वो तो मेरी जिंदगी मुझसे छीनने की बात कर रहा है। क्या एक लेमैन की जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी नॉलेज है, विल इट बी गुड? और विल दैट नॉलेज बी गुड? जो नॉलेज आज आप मशीन के जरिए हासिल करेंगे, आपको पता होगा कि एक्वाफायर जोन में मैं कितने हद तक पानी डिग कर चुका हूं, मैं उससे नीचे की जो मेरी जोन है उसके नीचे से मैं कितना पानी डिग कर चुका हूं। ये जो बहता दरिया का रन ऑफ रिवर वाटर है, ये मेरी एक्वाफायर जोन को कितना स्ट्रेंथन करेगा, ये मेरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, मेरे जिंदा रहने के लिए। दिस नॉलेज अगेन is to be attained with the techniques of future. If you have to live, you have to know the future. That is a test case for Pakistan to know that कि मेरे पानी के साथ हिंदुस्तान की वो वाहदे की वजूहात क्या थी कि मगरबी दरिया के 80% के ऊपर मेरा हक था और मशरकी दरियाओं के 20% पर उसका हक था। राइपेरियन लॉस थे वहां पर। ब्रह्मपुत्रा 38% हिंदुस्तान का पूरा करता है, तिब्बतियन वाटर लेन उसका पानी पूरा करती है। तो शेड बेसन्स में से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई थी जो हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक थी, वो यूनिलेटरली खत्म करेगा। So ladies and gentlemen, young boys and girls and students sitting here, you have to be equipped with this knowledge, and machine knowledge is the knowledge which will determine precision, perfectness, substantiation of your argument that what you are saying. मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं कि इस मौके पे these are not very good times when we are interacting. There's a lot of stress, there's a lot of एक तशक्कर का एहसास भी है, एक तफख्र का एहसास भी है। ये मेरी जिंदगी की सबसे प्राउड मोमेंट भी है, but yet at the same time I'm a worried head. I have seen India violating my territorial sovereignty. I have seen India blaming me for that act which I have not done. I have asked for evidence, no evidence have been proven. I am a country जिसने 90,000 से ज्यादा लाइफ लॉस फेस किया है, शहादतें दी हैं हमारी अफवाज ने, हमारे सिविलियन ने। हमने 150 बिलियन 200 बिलियन के करीब यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी का स्ट्रेन बर्दाश्त किया है इस वॉर ऑफ टेरर में। हमने दुनिया के साथ मिलके एज अ फ्रंट लाइन स्टेट वी हैव फॉट अगेंस्ट एनी फॉर्म एंड एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ टेरर। हम लड़े हैं इसके खिलाफ। और हमारे पे जब इल्जाम लगता है और सबूत भी नहीं दिया जाता और उसको बहाना बनाकर हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया जाता है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरी जिंदगी का काबिल फख्र तरीन लम्हा है जब पाकिस्तान ने अपनी दिफाही सलाहियत को दुनिया के सामने तस्लीम कराया, अपनी स्किल्स को, सुपीरियर स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया। और इस एक बैटल में, इस पूरी वॉर के मुझे नहीं पता कि क्या जहते होंगी, लेकिन आज के दिन में खड़े मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके के साथ, चाहे फिजाइया हो, चाहे बहरिया हो, चाहे बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान हो, बड़ी शानदार हिम्मत के साथ उन्होंने इस मौके पर अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मैं आप स्टूडेंट्स का भी, जो आप लोग आज एक नई इरा में हम जिंदा हैं, the way the youth has reacted to this, the way the youth have responded. Somebody was telling me, blame कर रहे थे कि जी ये नौजवान ऐसे करते हैं, ये नौजवान ये ज्यादती करते हैं, इन नौजवानों में तशक्कर का एहसास नहीं, इन नौजवानों में फलां चीज की कमी है। मैंने कहा होल्ड ऑन जेंटलमैन, I have a different argument. And I say, because I have been amongst them for a long time, I have been dreaming big. नौजवान की आंख में बड़े ख्वाब होते हैं, नौजवान की आंख में दुनिया फतह करने के इरादे होते हैं। नौजवान ये समझता है कि मैं तरक्की की वो मनाजिल तय करूंगा जो मुझसे पहले किसी और ने नहीं की। नौजवान अपने आप को इकबाल का शाहीन भी तसव्वुर करता है और बैक वक्त नौजवान ये भी समझता है कि वो सलाहियतों का मंबा है।
ये नौजवान की ख्वाहिशों को, नौजवान के इन ख्यालात को किसी तौर पर भी मैं उनको ये नहीं कह सकता कि ये बागी हैं, या मैं ये नहीं कह सकता कि ये नौजवान गुमराह हैं, मैं उनको इंसल्ट नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूं कि उस्तादों को भी ये सबक इन नौजवानों से आज मिलेगा, that how you have to come up to the committee of the world. And it is proving true. It is proving true. You have proven it in this war. This warfare, where it was fought, I don't know. How many destinations India hit, I don't know. Where I went, I was told that this happened. I was informed that this happened. Now, there were two stories. The stories narrated by my youth, the world accepted them. That hate mongering, that false propaganda, all those lies on the other side, उसको दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। आपके बताए बयानिया को तस्लीम किया गया। मैं ये समझता हूं कि आपका इस कॉन्फ्रेंस में ये जो इंटरेस्ट मैंने देखा है आज, और डॉक्टर कयूम साहब, ये जो आपने आज इस कॉन्फ्रेंस का 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, इसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देख के, मुअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर साहिबान की पार्टिसिपेशन देख के, आई कैन सी फ्यू फेसेस ऑफ द फैकल्टी, बड़े मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम भी मौजूद हैं। आई एम श्योर कि आप इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आप बड़ी एक अच्छी वर्किंग पेपर तैयार करेंगे जो कि रहनुमाई फराहम करेगा। और मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात और भी करना चाहता हूँ, और मैं आपके सामने एडमिट करना चाहता हूँ। Recently, once we were being confronted with this AI challenge, so I had a conference in Punjab Assembly, a Commonwealth Parliamentary Associations conference. 2 regions were here. There were many countries. There were like 52 different speakers from different assemblies here. And suddenly, one fact transpired to me. मेरे सामने ये हकीकत आश्कार हुई कि भाई मेरे एजेंडे में तो ये भी है कि AI को रेगुलेट करने के लॉज भी बनने हैं। आई वॉज टेकन अबैक। मैंने कहा मैं तो खुद एक बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता आदमी हूँ इस एतबार से, मेरी तो डिग्री भी इस काम में मेरी मदद नहीं करेगी। मैंने मंगवाया, मैंने कहा मुझे वो लिस्ट ला कर दें कि जिन असहाब ने इस पर कानून साजी करनी है, उनमें से कितने लोग हैं जिनको एक्चुअली पता है कि AI क्या है। असेंबली में बैठे अरकान, एंड आई वॉज टेकन अबैक, देयर वॉज नन, नॉट अ सिंगल वन। ये बड़ी तशवीश की बात थी कि कानून जिन्होंने बनाना है, उनके पास वो स्किल सेट उस कानून को बनाने का जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक वो स्किल सेट अवेलेबल नहीं है। तो स्किल सेट हैज टू बी इम्पार्टेड। स्किल सेट इज नॉट एन ऑटोमेटिक थिंग। ये आपको पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, ये खुद ब खुद नहीं आ सकता। तो ये स्किल सेट सीखना एक लाजमी अमल है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगी, आपको सिखाएगी, लेकिन जब आप उसके ऊपर अमल करने का वो मौका आएगा तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी अपनी एबिलिटी होगी। मैंने आपको ये एग्जाम्पल कोट की है। आई हैव लॉ ग्रेजुएट्स इन पंजाब असेंबली, आई हैव बैचलर ऑफ आर्ट्स, आई हैव गॉट मास्टर्स इन फिलोसफी, आई हैव गॉट religious scholars there, I have got doctors, engineers, everybody is there. But certainly this is a new, ये एक नई दुनिया है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के साथ कोई मुआहिदा करके दे जो हम मेंबर्स को ये पढ़ाएं, बताएं कि AI का रेगुलेशन ज़रूरी क्यों है या क्यों ज़रूरी नहीं है। अगर AI की एक रेगुलेटरी रेजीम बननी है तो उसके बनाने के लिए कौन से चैलेंजेस हैं, उनको देखें कि आप उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए
کن وجوہات کی بنیاد پر کریں گے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے کیس آف جسٹ سیئنگ اے یس اینڈ نو. یہ آپ کو پہلے ایک معاہدہ کر کے کہیں سے اسکل سیٹ ان تک لے کر آئیں. آپ جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں, آپ اس بات سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے پاس آج یہ وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے کہ آپ اس اسکل سیٹ کو سیکھیں. مے اٹ بی ہیلتھ, may it be education, may it be legislation, may it be solid waste management. میں گورنمنٹ سائڈ سے بات کر رہا ہوں. may it be anything. آپ انجینئرنگ کوئی بھی چیز دنیا میں اس کے بعد اس کی ٹرانسفارمیشن, اس کا رستہ یہ اسکل سیٹ کے ساتھ وابستہ ہے. تو میری ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قیوم چودھری, آپ کو, ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بڑا شاندار انیشیٹو ہے. اس کانفرنس کے ذریعے آپ کچھ حتمی تجاویز مرتب کریں گے جو نہ صرف ان طلباء کے لیے بلکہ پروفیشنلز کے لیے, گورننس کے ماڈل کے لیے بھی یہ ڈاکومنٹ جو آپ کا ہوگا اس سے ان کو معاونت ملے گی. میں آخر میں, بیکاز اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ, جو آپ کا یہ ہیومڈ لیول ہے کافی مشکل ہے, اس میں کافی آپ نے حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے ساری تقاریر بھی سنی ہیں. اینڈ نوئنگ دا فیکٹ دا آنریبل اسپیکرز دوز ہو کیم ہیئر دے جسٹ ریسٹرکٹیڈ دیر, انہوں نے اپنی بات کو بڑا مختصر بھی رکھا. تو میں بھی اس بات سے, کیونکہ آپ نے مجھے زیادہ موقع دیا ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ میں اس اگست فورم پہ اس پنجاب یونیورسٹی میں, جو کہ ہم سب میں سے بہت سو کی مادر علمی بھی ہے, یہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. گو آئی ہیو ناٹ بین اے اسٹوڈنٹ ہیئر بٹ آئی ہیو بین associated with this institution for a long time. I have been teaching here, I have been coming to law school. میں یہاں کر پڑھاتا بھی کسی وقت میں رہا ہوں. I have a certain set of کچھ نہ کچھ وابستگی میری رہی. تو میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس فیوچر ویژن کی اس کانفرنس میں اپنی پریکٹیکل کنٹریبیوشن بھی دیں گے. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ایک باآواز اور باقی کے اور بہت سارے ایریاز میں بھی یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. اب میں دوسرے اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں, جس میں ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانمی اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ابھی تک پروگرس کی ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے اسٹریٹجک پلان اسٹیٹ بینک کا ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں, جس میں راست جو ہے, جو کہ ہمارا مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فنڈز ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو گئی ہے. اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ابھی جو اسٹینڈرڈ ہے کہ ایک جگہ سے ملک کے دوسرے کسی بھی کونے میں فنڈز جو ہے اس وقت صرف 6 سیکنڈز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اب اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے ٹائم لائن جو اچیو کیا ہے وہ 6 سیکنڈز ہے, کہ آپ ابھی ایک جگہ سے کلک آف بٹن پہ کسی بھی ملک کے دوسرے حصے میں آپ 6 سیکنڈ کے اندر اپنے ٹرانسفر فنڈز کر سکتے ہیں. اس کا وہ کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا اسٹینڈرڈ ٹائم لائن جو ہے وہ 17 سیکنڈ تھا, لیکن ہم نے ابھی تک جو اچیو کیا ہے جو اس میں جو اسٹینڈرڈ وہ 6 سیکنڈز ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقریباً انسٹنٹ ٹرانسفر آف فنڈز ہے فرام ون پلیس آف دی کنٹری ٹو ادر پلیس آف دی کنٹری. اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس میں ہماری ڈیجیٹل ٹرانزیکشن جو ہے اس میں بہت ہی نمایاں اضافہ ہوا ہے. تو میں آپ سے جو 2-4 جو نمبر شیئر کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے پالیسی انٹرونشنز اور انیشیٹو کے نتیجے میں ماضی قریب میں نیشنل پیمنٹ ایکو سسٹم میں نمایاں ترقی ہوئی ہے. 2024 کے سالانہ ریٹیل ٹرانزیکشنز کی تعداد جو ہے 5.5 ارب سے بڑھ کر جو ہم نے ٹوٹل ٹرانزیکشنز کی ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے 5.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب ہو چکی ہیں. اور حجم کے لحاظ سے یہ 38% سالانہ گروتھ ہے, ایک سال کے اندر 38% گروتھ ہوا ہے. جبکہ مالیت کے لحاظ سے ہماری ریٹیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس میں 13% جو ویلیو ہے اس کی
اس میں 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور یہ 4.95 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 559 ٹریلین 559 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہو چکی ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو آپ دیکھیں کہ گزشتہ 5 سال کے اندر جو ہمارا جو ریٹیل ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا شیئر ہے جو کہ 5 سال پہلے 52% تھا ٹوٹل ٹرانزیکشنز کا, اس وقت جو ہے وہ 87% آف دی ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز 87% آف ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز آر ٹیکنگ پلیس ان ڈیجیٹل فارمز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا, تقریباً ابھی جتنی ٹرانزیکشنز ہمارے یہاں ریٹیل میں ہو رہی ہیں اس کا 87% جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈس کے ذریعے ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد جو ہے اس میں مزید بھی اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, جس میں بینکس کا, ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے جو والٹس ہیں ان کا, اور ہماری جو الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا, اور اس طرح دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بہت, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اہم کردار ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے وہ پروگرس ممکن ہوئی ہے. اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی دی ہے. یہ 5 سال کی اسٹریٹجی ہے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کو مزید آگے بڑھانا ہے, اور 5 سال کا یہ پیریڈ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اس پیریڈ کے آخر تک ہم اپنی ٹرانزیکشنز کو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ ڈیجیٹائز کریں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں ہوگا. ساتھ ساتھ جو ہمارے جو کسٹمرز ہیں, پبلک جو ہے, ان کو بہت اس میں سہولت ہوگی. ایک تو ان کی جو کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے وہ کم ہوگی, اور دوسری اس میں ایفیشنسی آئے گی, کیونکہ ایفیشنسی ان ٹرانزیکشن, جب آپ کی فنڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی ٹرانسفر ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے بزنس کی وہ فوری ہوں گی, اور آپ کے پاس جو فلوٹ پہلے بینکس آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن 5 دن ایک ٹرانزیکشن میں لگتے تھے, تو اس کے نتیجے میں ہمارے کاروباری جو حضرات اور بزنس مین جو ہے, اور بزنس جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے, ان کے فنڈز سٹک ہو جاتے تھے اور وہ ٹرانزیکشنز اور جو انہوں نے دوسری ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی تھی وہ نہیں کر پاتے تھے. تو لیکن اب اس کے نتیجے میں آپ کا فوری ٹرانزیکشن کا ہونا اور ساتھ کم لاگت پہ ہونا, تو اس کی وجہ سے بزنس کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا, ساتھ ساتھ پبلک کو بھی بہت فائدہ ہوگا. تو میں بس اس میں جو ہمارا جو اینڈ گول ہے کہ ابھی 5 سال پہلے جو 2015 میں, بلکہ ہماری جو جتنی پاپولیشن ہے, اڈلٹ پاپولیشن, جو ہمارے اڈلٹ پاپولیشن اس وقت تھی 2015 میں, اس کا صرف 16% جو ہے وہ ان کو بینکنگ سیکٹر تک کسی قسم کی فائنینشیل سروسز تک رسائی تھی. ان کی ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز صرف 16% تھی. اس وقت جو ہے وہ یہ بڑھ کے 64% کے اوپر جا چکی ہے. اس وقت ہمارے جتنی اڈلٹ پاپولیشن ہے ان کے 64% حصے کو کسی نہ کسی فارم میں فارمل فائنینشیل سروسز تک ایکسیس جو ہے وہ حاصل ہے. اور جو ہم نے اس اسٹریٹجی, جو ہماری نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے, اس میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2028 تک انشاءاللہ ہم اس پاپولیشن کے اس حصے کو, جو اڈلٹ پاپولیشن ہے, اس کو 75% آف دی ٹوٹل اڈلٹ پاپولیشن تک کو ہم فائنینشیل سروسز تک جو ہے وہ جو ایکسیس ہے اس کو ممکن بنائیں گے. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیشت کے اوپر بھی بہت مثبت اثر پڑے گا. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو 2-3-4 چیزیں, بلکہ 3-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو اسلامک بینکنگ کے بہت سارے اس وقت CEOs اور سینئر بینکرز موجود ہیں, تو میں ان سے کی توجہ خاص کر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائرٹی سیکٹرز ہیں, جس میں کہ SME سیکٹر ہے, جس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, جس میں ہاؤسنگ سیکٹر ہے, جس میں مائکرو ہماری انٹرپرائزز ہیں, تو ان کو فائنینشیل سروسز تک ایکسیس اور ان کو فائنانسنگ مہیا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خاص کر اس میں جو ہمارے جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے ان کا بہت, میں سمجھتا ہوں کہ اہم کردار ہے, اور ان کو اس ایکسیس کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ کرنے چاہیے, تاکہ ہمارے جو پرائرٹی ایریاز ہیں ان کی فائنینشیل سروسز تک ایکسیس کو ممکن بنایا جا سکے.
दूसरे नंबर पे इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए बहुत सारे इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि और ख़ासकर नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और वो भी शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके आने की ज़रूरत है, ताकि वो जो हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनको ऐसी प्रोडक्ट मुहैया की जाए जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि बहुत काम करने की हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, और इस सिलसिले में हम स्टेट बैंक की तरफ से भी जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो हमेशा प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जैसे अदारे और इस तरह के जो दूसरे अदारे हैं जिनको कि इसमें रोल प्ले करना है, वो इस तरह के जो हमारे फोरम्स हैं उसके ज़रिए से अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खदशात हैं कि इस्लामिक बैंकिंग पता नहीं इस्लामिक है कि नहीं, पता नहीं ये जो काम करते हैं ये शरिया कंप्लायंट है कि नहीं, बहुत सारे खदशात लोगों के होते हैं। तो इन खदशात को एड्रेस करने के लिए जो अवेयरनेस क्रिएशन है और जो हमारे शरिया कंप्लायंट बैंकिंग के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल बैंकिंग से, उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करके जनरल पब्लिक को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करना कि जो हम काम कर रहे हैं ये शरिया के असूलों के ऐन मुताबिक है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह के अदारों का बहुत अहम किरदार है और इस किरदार को हमें निभाना चाहिए। और आखिर में मैं जो सकूक की बात बार बार होती है, तो इसमें सकूक इशूएंस के लिए, क्योंकि सकूक का ना इशू होना एक बहुत बड़ी हर्डल है इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, तो उसके सिलसिले में बैंकिंग इंडस्ट्री को और रेगुलेटर्स को और गवर्नमेंट को जो किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमें मिलकर जो अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ताकि हम सकूक ज़्यादा इशू कर सकें और उसके नतीजे में इन्वेस्टर्स को नए प्रोडक्ट जो कि शरिया कंप्लायंट वो फराहम कर सकें, और उसके नतीजे में इस्लामिक बैंकिंग के इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, और उसके नतीजे में इस बैंकिंग इंडस्ट्री का इसका शेयर जो है वो टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री में भी मज़ीद बढ़ेगा। तो इसमें हमें सबको अपना अपना रिस्पेक्टिव किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। तो मैं इसके साथ ही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं एक बार फिर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम के ऊपर बुलाया और बात करने का मौका फराहम किया, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के फोरम जो है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कराची में इस्लामिक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियू जोंग चाओ से बीजिंग में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और चीन की सियासी पार्टियों के दरमियान राब्ते मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के हवाले से चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत काबिल कदर है। इस मौके पर चीन के वज़ीर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक शराकतदार और बेहतरीन दोस्त मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तरजीह हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की कौम न पहले झुकी थी और न ही आइंदा झुकेगी। चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती आबादी समेत कई मसाइल का सामना है। ऐसे में भारत झूठे बयानी और बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। तफसील बताएंगी फरहाना खान अपनी रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने खसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और चीन लोगों की खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि चीन की इंतहाई कम अरसे में तरक्की काबिल तकलीद है। आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीन की तरक्की है एंड दी फॉर इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जितनी बड़ी आबादी को जो डेवलपमेंट और जो खुशहाली चाइना ने मॉडल पेश किया, दैट इज फॉर आई थिंक द वर्ल्ड टू सी, एंड इट्स रिमार्केबल। एंड पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान के जो अवाम है, वो भी यही चाहते हैं कि हम भी तरक्की की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, बिकॉज वी ओwe it to the people of Pakistan. The prosperity and well-being of the people of the states come from peace and stability. और उसके लिए कोशां है चाइना भी और पाकिस्तान भी।
and all the responsible states. DG ISPR ने कहा कि दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मसाइल दरपेश हैं। बड़े ममालिक का विजन भी बड़ा है, लोग इंसानियत की तरक्की की जानिब देख रहे हैं। ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े। हम पहले भी कह चुके हैं, न हम झुके थे न झुकेंगे। हमारा अज़्म मजबूत है जो हमने दिखाया भी है। शहादत हमारी आरज़ू है। हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे, बिकॉज मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब भी कहूंगा कि हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें जिंदगी से ज्यादा है। एंड इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ ईच वन ऑफ अस हु इज वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, वेदर इट्स ब्लू, व्हाइट और खाकी, टू डाई फॉर हिज होमलैंड। दैट्स द बिगेस्ट ऑनर दैट वी हैव। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद है, यही वजह है कि लोग फतह की बजाय अमन का जश्न मना रहे हैं। आज आप पाकिस्तान की गलियों पे देखें तो आपको यहाँ पे फतह नहीं, पीस सेलिब्रेट करते लोग नजर आएंगे। आपको इनमें ह्यूमिलिटी नजर आएगी। वी आर वेरी डाउन टू अर्थ, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वी आर बोइंग आवर हेड्स डाउन इन ह्यूमिलिटी रादर देन थम्पिंग आवर चेस्ट। व्हाई? बिकॉज वी प्रेफर पीस। लोग ह्यूमैनिटी की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। इस दुनिया को क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, इसको मिस इन्फॉर्मेशन के इश्यूज हैं, बढ़ती हुई आबादी के इश्यूज हैं। देयर आर टू मेनी इश्यूज दैट दिस ग्लोबल कम्युनिटी हैज टू कन्फ्रंट, इज कन्फ्रंटिंग। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज इस हवाले से कई बार शवाहिद मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पेश कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अब खुद भारत में हिंदुत्व नज़रिए के हामिल शख्स ने यह इकरार किया है। भारत की रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुत्व ग्रुप का कारकुन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। भूमि हारसागर नामी एक्स से अपील उन्होंने की है कि मुझे ये जानकर मायूसी महसूस हुई कि मेरा ज़ाती अकाउंट गैर मुस्तनद करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। मैं तस्दीक करता हूं कि ये अकाउंट वाकई मेरा है। एक्स से अपील करते हुए भूमि हारसागर ने कहा कि बराहे करम मेरी शिनाख्त का जायजा लेकर अकाउंट बहाल किया जाए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि उसका ये इकरार साबित करता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी भारत से होती है। इससे जाहिर होता है कि भूमि बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी दहशतगर्द प्रॉक्सीज के लिए काम करता है। भारत और फितनतुल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल्स की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की जा रही है। भारतीय टीवी चैनल में BLA की वीडियो दिखाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को न सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है बल्कि दहशतगर्दी को खुले आम दिखाया जा रहा है। भारत ने हार तस्लीम करने के बजाय दहशतगर्दी को सहारा बना लिया और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की नई चाल शुरू कर दी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हमले की तशहीर से भारत का दहशतगर्दों से गठजोड़ बेनकाब हो गया है। भारतीय चैनल्स पर BLA की पुरानी वीडियो नशर करके दहशतगर्दी की सरेआम पुश्तपनाही की जा रही है। नाम नेहाद BLA भारत का तैयार करदा फितने का बीज है जो पाकिस्तान के अमन को जड़ से उखाड़ना चाहता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक BLA भारत का प्रॉक्सी नेटवर्क, मासूम पाकिस्तानियों का कातिल और मोदी का आलयकार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में 17 मई को गिरफ्तार की जाने वाली हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का ताल्लुक BJP से निकला। मोदी सरकार का इल्जाम है कि ज्योति ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता रखकर हसास मालूमात फराहम की, जबकि खातून BJP से वाबस्ता हैं और मुतादिद बार BJP के इवेंट्स में शरीक हो चुकी हैं। भारतीय बॉर्डर क्रॉस करने पर BSF जवान ने जब शनाख्त पूछी तो ज्योति ने खुद को BJP से बताया। BSF जवान ने BJP से ही चाहिए कहकर खातून से जांच पड़ताल छोड़ दी। अवाम ने सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा की फॉल्स फ्लैग गिरफ्तारी का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय अवाम के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा का वीलॉग साबित करता है कि वो BJP की करीबी कारकुन है और ये मोदी की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। ज्योति मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर सिर्फ मोदी और BJP को फॉलो करके वाज़ेह कर दिया है कि वो BJP की ही कारकुन है।
ناظرین اب آپ کو بتائیں گے ممتاز عالم دین اور جماعت اسلامی راولپنڈی کے سابق امیر مولانا عبدالجلیل نقشبندی کی نماز جنازہ راولپنڈی ریس کورس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں جماعت اسلامی کی قیادت، سیاسی جماعتوں کے ارکان اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مولانا عبدالجلیل کچھ عرصے سے علیل تھے۔ مولانا کا آبائی تعلق بٹاگرام سے تھا۔ وہ عرصہ دراز سے راولپنڈی میں درس نظامی اور دینی تعلیم کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے جید علماء میں ہوتا تھا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ بدھ کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا، تاہم سکردو میں بوندا باندی ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، جیکب آباد 48، لاڑکانہ، روہڑی، سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان سپر لیگ کے گروپ میچز راولپنڈی میں مکمل ہو گئے۔ ایونٹ کا پلے آف مرحلہ اور فائنل کی میزبانی قذافی اسٹیڈیم لاہور کرے گا۔ پی ایس ایل کا کوالیفائر کل کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہوگا۔ جمعرات کو لاہور قلندرز اور کراچی کنگز پہلے ایلیمنیٹر میں مد مقابل ہوں گے۔ دوسرا ایلیمنیٹر جمعے کو ہوگا۔ پی ایس ایل کا فائنل اتوار کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ ناظرین، شارجہ ایف سی نے چیمپئنز لیگ 2 کا ٹائٹل جیت لیا۔ سنگاپور میں کھیلے گئے فائنل میں متحدہ عرب امارات کے کلب شارجہ ایف سی نے میزبان کلب لائن سٹی سیلرز کا براعظمی ٹائٹل جیتنے کا خواب پورا نہیں ہونے دیا۔ شارجہ ایف سی نے سیلرز کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے مات دی۔ کھیل کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے گزرا۔ 74ویں منٹ میں فریاض بن البری نے گول کر کے شارجہ کو برتری دلائی۔ اضافی وقت کے پہلے ہی منٹ میں سیلرز کے میکسن لیسٹن نے مقابلہ برابر کر دیا۔ 97ویں منٹ میں شارجہ کے مارس ملونی نے فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو ٹائٹل دلایا۔ ناظرین، کھیل کا احوال آپ نے جانا، اب آپ کو لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ اور سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ پی ٹی وی نیوز پر یہاں وقت ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔